Hello students, again I welcome you in this e-lecture on the topic chemistry of the elements of first transition series. So in the past lectures we discussed about the general properties of these transition elements. Now uh, in the previous lecture we went through the stability of different oxidation state of these metals. In the continuation of this, I would like you to know about the ionic character and the covalent character in the compounds of these transition elements. See, as I told you earlier, this is a good explanation of the change in ionic character as well as the with increase in oxidation state, how the ionic character decreases and how acidic character increases in the various oxides of these elements. So you can see on the screen that transition elements can form ionic bond in the lower oxidation states and the ionic character of the bond decreases, or in other words we can say covalent character of the bond increases. So with the increase in the oxidation state. So with decrease in ionic character, the acidic character of oxides or chlorides increases. For example, you can see the various oxides of titanium, vanadium, chromium and manganese on the screen. See, with the decrease of the ionic character of MO bond in the oxides, the acidic character of the oxide increases. As you can see, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है फ्रॉम द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट where you can see the oxides of titanium, vanadium, chromium and manganese. In the +3 oxidation state you can see Ti2O3, V2O3, Cr2O3 and MnO3, and in the +4 oxidation state you can see TiO2 and MnO3. So and in +6 oxidation state you can see CrO3 and MnO3 which are found to be unstable also. So in the +2 oxidation states all the oxides are basic in nature. In +3 and +4 you can see the amphoteric nature of these oxides, and as the oxidation state reaches its highest you can see the acidic character of these oxides. Okay. In the same manner आप क्लोराइड्स के साथ भी ये एनालाइज कर सकते हैं कि विद डिक्रीज इन द आयनिक करेक्टर ऑफ MCl बॉन्ड इन दीज क्लोराइड्स द एसिडिक करेक्टर ऑफ द क्लोराइड इंक्रीजेज एज शोन हेयर ऑन द स्क्रीन. देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम डाइक्लोराइड है, वैनेडियम डाइक्लोराइड है, +3 में TiCl3 एंड वैनेडियम ट्राइक्लोराइड, एंड +4 में टेट्राक्लोराइड ऑफ टाइटेनियम एंड vanadium tetrachloride, and +5 you have VOCl3. So as the oxidation state is increasing, ionic character of MCl bond is decreasing and acidic character is increasing. Okay, now we come to the reactivity of these transition elements. देखिए रिएक्टिविटी जो है द आयनाइजेशन, आपको पता है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर फेयरली हाई एज द साइज ऑफ दीज एटम्स आर देयर एटम्स आर स्मॉल. They also possess high heat of sublimation due to existence of covalent bonding due to DD overlapping, and these metal ions they do not get hydrolyzed easily. All these properties decreases the tendency to react. This is why the transition elements they have a tendency to remain unreactive. We call them noble, and as you know that this tendency is quite pronounced in gold and platinum. ठीक है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम तो होते ही नोबल एलिमेंट्स हैं.
and the reactivity of these transition elements generally decreases in going from first transition series to the third transition series. यानी कि the elements of first transition series they are much more reactive than those of the second and third series. ठीक है. So the elements of third transition series are least reactive among the transition elements because of the obvious reasons. They have small sizes, small atomic sizes, high ionization energy, very high level of sublimation and low heat of hydration of their metal ions. देखिए आपको पता है कि क्रिया जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता, वो किसी भी धातु की क्रियाशीलता जो है उसके IP आयनाइजेशन पोटेंशियल पर निर्भर करती है. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान किसी भी धातु के लिए जितना कम होगा वह धातु उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, त्याग देगा. और जो धातु इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से त्याग कर सकती है वह जो है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, प्रबल अपचायक होती है और हाईली रिएक्टिव, अत्यंत क्रियाशील होगी. अब आपको पता है कि संक्रमण धातु का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, या तो NS1 या NS2 होता है. तो ये जो NS1 NS2 कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ जस्ट लाइक एल्कलीन अर्थ मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अनुरूप ही होता है. फिर भी इनकी रिएक्टिविटी में बहुत अंतर होता है. देखिए जो एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं वो बहुत क्रियाशील होते हैं क्योंकि इनकी IP के जो मान होते हैं बहुत कम होते हैं. और आपको पता है कि IP के मान इसलिए कम है क्योंकि NS1 या NS2 विन्यास के अंदर कौन सा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जिससे आसानी से ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग के जो है स्टेबल स्थायी विन्यास ग्रहण कर सकते हैं. लेकिन संक्रमण धातुओं में ऐसा नहीं होता है. जैसा कि अब तक के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि इनकी जो आयनन विभव हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल हैं, उनके मान काफ़ी उच्च होते हैं और हाई IP वैल्यूज़ के कारण ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते. इसी कारण से क्या होंगे, ये कम क्रियाशील होंगे, कम धन विद्युती और दुर्बल अपचायक धातुएं कहलाई जाती हैं. ठीक है. अब ये आपको इसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़. देखिए आप स्क्रीन पे यू कैन सी दी वैल्यूज़ ऑफ सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इनकी वोल्ट्स में दी हुई हैं. तो इन वैल्यूज़ की ऑब्जर्वेशन से कुछ पॉइंट्स जो हैं दे आर वेरी मच क्लियर, वेरी मच एविडेंट टू अस दैट मरकरी एंड कॉपर ना, कॉपर की वैल्यूज़ की, कॉपर में यू हैव पॉजिटिव वैल्यू दैट इज़ +0.34. तो बाकी सब एलिमेंट्स के लिए दीज वैल्यूज़ आर नेगेटिव, मतलब कि दे आर लेस दैन दैट ऑफ हाइड्रोजन जिसकी वैल्यू हम 0 मानते हैं. तो their values being less than that of hydrogen make these metals able to liberate hydrogen from dilute acids. ठीक है ना. देखिए ये रिएक्शन से आप समझ सकते हैं. तो अब क्योंकि आपने इस टेबल के ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि कॉपर के अलावा कोबाल्ट की भी वैल्यू है, कोबाल्ट एंड कॉपर के आयन पेयर्स के लिए इनकी वैल्यूज़ जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है. और तो सभी इनको धातुओं को जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहिए. ठीक है. और इस तरह से इनको जो है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की भांति व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है. ठीक है ना. देखिए कि some of the metals, these metals they get protected from further attack of the acids due to formation of a thin protective layer of their oxides, which prevents the acids to come in further contact with the metal. ठीक है. तो होता क्या है कि
जितने भी अधिकांश जो मेटल्स हैं उन पे उनके ऑक्साइड्स की एक परत सी चढ़ी हुई रहती है जो इन धातुओं को प्रोटेक्ट किए हुए रहती है ना। तो हम ये मानते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ के नेगेटिव वैल्यूज़ होने के बावजूद भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो आपने देख ही चुका है कि दे आर नॉट रिएक्टिव, क्रियाशील नहीं होती है, क्योंकि उनके जो मेटल सरफेस है उस पर ऑक्साइड्स की एक लेयर जो चढ़ी हुई होती है। जैसे कि हम पाते हैं कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है इट इज़ मच लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। इसका है नेगेटिव में -0.71 वोल्ट। इट गेट्स कोटेड विद नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड्स Cr2O3, which this layer of oxide makes it so unreactive that it can be used as a protective non-oxidizing metal. ठीक है, तो in spite of the fact that all the metals of first transition series except copper, they have high negative values of standard reduction potential, these are not as good reducing agents as the metal of groups of S block. The poor reducing capacity of the transition metal is due to obviously high heat of vaporization, high IP ionization potential values and low heat of hydration of their ions. So इसके ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अब तक के लेक्चर्स में हमने पाया कि जो है इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं और इसी वजह से जो है ये क्रियाशील भी कम होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी अन्य प्रॉपर्टीज़ लाइक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरियस अदर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके देन, गुड बाय।